بنا بولے آج لے ان کی بنا، آج مدد مان ان کی، آج مدد مان ان کی. کل کیا ہوا؟ کل اگر قیامت کو اگر مان گیا کیا کہیں گے؟ اس لیے آج مان لے. بولیے آج مان آج بول یا رسول اللہ، آج بول یا رسول اللہ سلام علیہ. آج رسول پر سلام کر، آج رسول کے آگے سر تسلیم خم کر دے. کل اسی کی شان بتائی جانے والی ہے. سب کچھ اسی کا ہے. بولیے سب کچھ اسی کا ہے. جنت اسی کی. بولیے جنت اسی کی. یہ بات اکثر سے سنا ہوں، جنت اسی کی. کیا ہوگا؟ میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں مقام محمود پر بھی رہوں گا. بولیے مقام پورے امتیوں کو لے لوں گا. پورے امتیوں کو چن چن کے بلا لوں گا. بولیے چن چن کے بلا لوں گا. جو میلاد میں آتا تھا اسے بھی بلا لوں گا. کیا بات؟ من دھن جو لگاتا تھا اسے بھی بلا لوں گا. جو یہ کیا ہے یہ کہہ رہے تھے وہ دیکھ رہے ہوں گے. بولے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس عمل کا مار ہے کہ ہمیں بلانا ہے. وہ کہے گا عمل تحقیق ہو رہا ہے. بولے عمل جانچا جا رہا ہے. جب عمل کی جانچ مکمل ہوگی جب تم آنا. بولے جب تم اب تو میلاد والے آ رہے ہیں. میلاد والے اب تو میلاد والے آ رہے ہیں. اب یہ لے لیں گے سب کو لے کر اللہ کے رسول جائیں گے جنت میں. جنت کا دروازہ بند ہوگا. بولیے جنت کا دروازہ بولیے جنت کا دروازہ بند ہوگا. اللہ کے رسول جب جنت میں جا کے جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے اندر سے آواز آئے گی کون؟ کہا کہ میں محمد. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آواز اندر سے آئے گی کہ انہی کے لیے کھلنے کا حکم تھا. جب دروازہ کھلے گا جنت رب کی. بولی جنت بنائی کس نے؟ اللہ نے. بولی بنائی کس نے؟ مالک کون ہے؟ بولی مالک کون ہے؟ جنت بنائی اس نے. اور افتتاح کرنے والا کون؟ دروازہ کھلے گا. رسول اللہ یہ ساری حدیثیں ہیں میں جو کہہ رہا ہوں. بولیے ساری. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیا سنا رہا ہے. کسی کو شوق نہیں ہے آخرت خراب کرنے کی. مجھے بھی خبر میں جا کے جواب دینا کیا سنا رہا. اب سنو میری بات غور سے. ذرا اس سے پہلے پڑھ لو. بڑی پیاری بات اور لطیف بات آ رہی ہے. پورے تن من دھن سے پڑھو. رسول اللہ جنت کے دروازے پر آئیں گے تو جب دروازہ کھلے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا. بولے میں جنت کے دروازے پر خود اللہ میرا رب خود میرا رب میرے استقبال کو آگے کھڑا ہوا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی کہ مقام بتایا جا رہا ہے. عرش پر ہو استقبال پر ہو. استقبال پر کیوں نہ میلاد منائے؟ کیوں نہ اللہ کے لئے بات سمجھ میں. چلیے آپ سے چل رہے ہیں میرے آقا کوئی ہمارے اللہ کے رسول بڑی اللہم صلی اللہ دیکھو نا ایک بھی اٹھنا نہیں چاہتا. کوئی ایک بھی اٹھنا نہیں چاہتا. کیسے پرسکون بیٹھے ہیں. بے شک کیسے پرسکون بیٹھے ہیں. کس انداز سے بیٹھے ہیں. کتنی دور جانا ہے صبح پھر بھی خیال نہیں ہے. بے شک پھر بھی خیال نہیں. ارے جو ان کا ہو جاتا ہے بولی جو ان کا ہو جاتا ہے پھر دنیا اس کے پیچھے لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتا دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے. بے شک. وہ لمحے مقدمہ کائنات فرماتی ہے کہ مجھ سے ایک نور نکلا. مجھ سے ایک نور نکلا. میں نے ملک شام کے محلات دیکھے. میں نے دیکھا
आमिना फरमा रही है, मैं ने देखा कि मेरी गोद में सफेद अतलसी रेशम के लिबास में लपेटा हुआ सब्ज रंग के परिंदे, सफेद रंग के परिंदे आए, मुझे कुछ मशरूब पिलाया गया, मुझे कुछ होश न रहा। फिर जब मैंने देखा तो क्या देखती हूँ कि सफेद लिबास में मलबूस आने वाले को किसी ने अपनी गोद में लिया, लेकर कहा कि ले जाओ मशरिक और मगरिब में इसको सैर करा के लाओ। फिर एक लम्हे के लिए वो वजूद मुक़द्दस मुझसे गायब हो गया। फिर मैंने देखा हाजिर हुआ, मैंने पूछा क्या हुआ, कहा कि जो आने वाला आया वो दोनों जहां का सरदार है, मशरिक और मगरिब इसके कदमों में डाल दिए गए, इसको ले जाके सैर करा दी गई, मुनादी करा दी गई कि जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है वो आ गया। इधर रसूल दुनिया में आए, उसी लम्हे काबे में 360 बुत थे, वो बुत खुद ब खुद आगे गिर गए, अचानक जमीन पे गिर गए। आने वाला एक फरिश्ता आया जिसके हाथ में सब्ज रंग के परचम थे, उसने एक काबे की छत पे नस्ब किया, एक मशरिक में और मगरिब में लगा दिया, ऐलान कर दिया कि काबा भी इसका, बोलिए काबा भी इसको दे दिया गया, मशरिक और मगरिब भी इसके कदमों में डाल दिए गए। और जब वो आया खुशबुएं मुश्क और अंबर की लपेटें आने लगी, जमीन और आसमान तक एक नूर का समा हो गया। 70,000 हूरों की खतार दर खतार आसमान से उतरने लगी। आमिना के घर से अर्श आज़म तक नूर का समा बन गया। कायनात वजन में आ गई, पहाड़ पुकारने लगे, जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियां देने लगे, दरख्त लहरा लहरा कर ऐलान करने लगे कि मुबारक हो, मीलाद मुबारक का महीना आ गया है। वो मुक़द्दस कायनात आ गया, वो मुबारकबादियां के चर्चे हुए, फरिश्ते बगलगीर होने लगे। नूरी मखलूक को अल्लाह ने कहा कि जहाँ जहाँ सारे फरिश्ते वालों, कायनात के सारे फरिश्तों का इज्तिमा हो गया और कहा कि जाओ आमिना के घर जाके उस घर का तवाफ करने लग जाओ। अरे काबे का ही तवाफ नहीं, बैत आमिना का भी तवाफ होता है जब रसूल उस घर में तशरीफ लाता हो। नूर का समा बन गया। उसके बाद जब ये सारे काम हो गए, आमिना फरमाती है उसके बाद वो बच्चा मुझे दिया गया। बोलिए उसके बाद वो बच्चा मुझे, अब ये सब कुछ कर लिया गया। उसके बाद आमिना कहती है कि बच्चा मैंने गोद में लिया, ये बच्चा मैंने गोद में लेके मैंने जब चेहरा देखा, गोद में लेके मैंने जब चेहरा देखा तो आवाज आई कि आमिना मुबारक हो, यही अल्लाह का महबूब है, यही अल्लाह का हबीब है। आ गया वो जिसकी बशारत हजरत नूह ने दी थी, जिसकी आने की तल्ला हजरत आदम ने दी थी। आदम ने कहा कि जब मुझे बनाया गया, जब मुझे रूह फूकी गई, मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम है उसके साथ मोहम्मद का नाम है, पत्ते पत्ते पर उसका नाम, हर जन्नत के शजर पर एक एक पत्ते पर उसका नाम, जहाँ जाता अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम खाता हो। आदम ने कहा कि कौन है वो, तो आवाज आई तेरी औलाद में होगा, इंतजार कर, बोली इंतजार। नूह ने कहा कि कश्ती मुझे सलामती दे दी, क्या करूं, कहा कि देखो, कहा कि इंतजार कर, बोली कहा कि इंतजार कर। जब वो रसूल कायनात में आमिना के गोद में आए तो आवाज आई रब की, हजरत आदम की सफवत, नूह की नजावत, इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल की ज़बीयत, मूसा की कलीमियत, हजरत ईसा की रूहानियत, 1,24,000 नबियों का जो उरूज था, रसूलुल्लाह की पैदाइश के वक्त
बोले उसके 1,24,000 नबियों की नबूवत का उरूज जहाँ खत्म हुआ, अल्लाह के रसूल उस उरूज पर पैदा हुए। बोले उस उरूज पर तुम क्या समझते हो? चांद को टुकड़े करना मौजूदा है। बोले क्या है? पत्थरों को करना पड़ा मौजूदा है। ये कह के टाल रहे। मैं दूसरी तरफ फिक्री का, एक होता है फितना जो कौम को लड़ाते हैं, एक होता है इल्मी फितना, फिक्री फितना। बोले क्या होता है? ये आम लोग इससे वाकिफ नहीं होते। जब आप रसूल की अजमत की बात करेंगे, मौजूदा है। बोले क्या है? अल्लाह ने अपने नबियों को मौजूदा देता है, वैसे ही मौजूदा दिया है। बोले क्या है? मौजूदा कह के आगे बढ़ने की कोशिश न करो। क्या है वो तो देखो। बोले क्या है? वो तो देखो कि जब 1,24,000 नबियों का वजूद बन के जब वजूद बन के जब ये रसूल आमिना की गोद में आया, आमिना की बहारें चलने लगी। जरा देखो ना, 1400 बरस के बाद है तो क्या हुआ? जब वो समा आता है, अल्लाह फिर से वो लम्हा लाता है। बोले फिर से अल्लाह फरमाता है सलाम हो उस दिन पर जब मेरा नबी पैदा होता है, सलाम हो उस दिन पर जब मेरा नबी दुनिया से आता है। क्या कहने हज़रत आमिना ने गोद में लिया, आमिना ने गोद में लिया और उस सफेद रेशम में लपेटा हुआ चांद जिसके आगे शर्मिंदा हो रहा था, जब वो वजूद मुक़द्दस गोद में आया तो आमिना ने देखा कि वो पलट के सजदा करना चाहता है। बोले पलट के क्या कर रहा है? शऊर नहीं है कि ये सजदा है? पलट गए, होठ हिल रहे हैं। तो हज़रत आमिना दाइया जो मौजूद थी, हज़रत सूफिया हज़रत अस्मा, जब कान करीब ले गई तो क्या देखती है? कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। बोलिए मेरी उम्मत की खुश हो जाए ये उम्मत कि ऐसा रसूल अल्लाह ने हमें दिया, ताजदार अपना हमें दे दिया। अरे कोई अपना प्यारा किसी को नहीं देता, तो अपना प्यारा किसी को, ये तो मेरे रब का एहसान है कि उसने अपना प्यारा हमें दे दिया। जो पैगाम है मिलाद का सुनो। नमाजें मस्जिद नबी में सफे बन चुकी, रसूलुल्लाह मुसल्ले पे आ गए, हजरत बिलाल खामत बोलने ही वाले हैं, नमाज खामत बोलने ही वाले, नमाज शुरू होने वाली है कि मस्जिद नबी के दरवाजे पे आवाज आई, एक सवाली की कि अल्लाह के नाम पे मैं परेशान हूं, मैं आया। ये आवाज आने की देर थी कि अल्लाह के रसूल मुसल्ले से पीछे हट गए। बिलाल से कहा जाओ उसे बुला लाओ। ये नहीं कहा कि जरा रुक जाओ, 5 मिनट में नमाज खत्म होगी। बोले 5 सफे बन चुकी, मुसल्ले पे जा चुके, कहो बिलाल के 5 मिनट रुक जाए, नमाज पढ़ के आता हूँ। कहा कि नहीं, नमाज होती रहेगी। बोले नमाज होती रहेगी, ये मेरे रसूल का किरदार है जो बता रहा हूँ, नमाज होती रहेगी। पहले मस्जिद नबी के दरवाजे पर आए, रोक कर उस साहिल से पूछा, उसकी झोली भर दी, उसके सवाल को पूरा किया, खुशो खुर्रम उसको रुखसत किया, फिर आके नमाज अदा की। बोलिए फिर आके या रसूलल्लाह नमाज के बाद भी तो ये काम हो सकता था, तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, नमाज अल्लाह की इबादत होती रहेगी, मगर बंदे की आदत उससे भी पहले करना है, उससे भी पहले पूरी करना। ये मेरे रसूल का किरदार है, रसूल का किरदार है।